आपके केस में क्या बेटा, कौन कौन से चैप्टर्स है? मैम चैप्टर नंबर मैम वो मेरी 11, स्कूल में 6। सेम स्कूल, अच्छा यस मैम। ओके। हमारा पेंडिंग कौन सा है सिर्फ वो बता देना, ठीक है बेटा? कोई यस नहीं। मैम। कोई नहीं है, ठीक है। चलो आज हमारा रेस्पिरेशन वाला कंटिन्यू करना है हमें, राइट? यस मैम। रेस्पिरेशन से मैम पेज कंटिन्यू करेंगे। नंबर। जस्ट अ सेकंड बेटा, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। मैम मुझे मैम मेरा डाउट है उस चैप्टर में। मैम हाँ मेरा हाँ भी ठीक है बेटा, सिलेबस आ गया है। विल टेक ऑल द डाउट्स, ओके? मैम यस मैम हर्ष को अंदर लो ना, वेटिंग रूम बेटा, में। मैं एडमिन नहीं हूँ अभी, आई एम नॉट एडमिन? द होस्ट राइट नाउ। ओके नाउ आई एम द होस्ट, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। मैम मेरे एग्जाम का सिलेबस आ गया, मैं बता दूं? हाँ हाँ बोल दो बेटा। मैम चैप्टर 5 एसिडिक एंड बेसिस एंड चैप्टर 8 विंड स्टॉर्म्स चैप्टर एंड 9 साइक्लोन। सॉइल्स। वेट बेटा, जाना एंड जिया, जो चैप्टर फिनिश नहीं हुआ है वही बता दो डायरेक्टली, नो मैम ऐसा कोई नहीं है, क्योंकि हमने बहुत टाइम पहले ही ठीक है? विंड स्टॉर्म्स वाला कर दिया। हाँ एग्जैक्टली, सो व्हाट आई वांट कि यस आपकी मैम। जब भी एग्जाम है, आपकी जब भी एग्जाम है उसके एटलीस्ट 3-4 डेज पहले इन्फॉर्म करना होगा, जिसकी भी एग्जाम, ठीक है? आप इन्फॉर्म कर दो मुझे 3-4 डेज पहले, हम उसके पहले जितना हो सकेगा आपके कोई क्वेरीज है, डाउट्स है, ठीक है, वो सब ले लेंगे उस टाइम पे, मैम क्योंकि हमारी उस टाइम पे मंडे को आपने 20 सारा, मार्क्स की एग्जाम है साइंस की। कब है बेटा मैम उधर टेस्ट होगा ना, टेस्ट होगा मैम मंडे राइट? को 31 31 31st 8 मंथ, ठीक है सॉरी मंडे। ठीक है, नो इशू फाइन। बट ये जो ईयरली हाफ ईयरली वाला आपका जो एग्जाम है उसमें हमें रिवीजन अच्छे से करना है, ठीक? तो उसके ओके मैम। 4 या 5 डेज पहले आप बता दो, ताकि आपकी कोई भी अगर क्वेरीज है तो हम ले सके, फिर से अगर रिवाइज करना है तो वो भी हम कर सके, ठीक है? आज हम देखेंगे रेस्पिरेशन, राइट? रेस्पिरेशन इन केस ऑफ फिश वी ऑलरेडी कंप्लीटेड, सो वी विल सी रेस्पिरेशन इन केस ऑफ, यस बेटा? मैम मैंने तो आपको कह दिया था ना वो। Yes, Vida. Yes, Dhvanit, I know. Okay. So respiration in case of grasshopper, earthworm, and some other organisms, we are going to check, right? Yes, page number I'll tell. But that is last topic. Okay. Devansh, that is last topic of this chapter. Respiration in case of different organisms. मैम Yes, beta. रीड करना है मैम? No, just a second. Wait. नहीं. Read नहीं करना. Human beings, animal, and plants depend on oxygen to survive. Here we can see 3 varieties of organisms: animals, plants, and human beings. Human beings and some other animals are very advanced type of system. Can we say that? Plants are completely different because they are preparing their own food and their system is completely different from us, right? And from animals, for different types of animals, we are having varieties of systems available. So we will see that, but what is common in animals and human beings? We are taking oxygen in and releasing carbon dioxide out. That is also one type of respiration, right? But same thing will happen here in case of plants also. They are also respiring, but the only thing will vary. What is it? That they are going to absorb carbon dioxide instead of oxygen and will release oxygen. So can we say that in nature that balance will happen? See, this is going to release oxygen. That's what we are going to take in, right? And that's why we can say who is balancing. If we are not going to, whatever carbon dioxide we are releasing will be absorbed and it will be done by whom? Plants, right? So this is mutual. It's not mutual exactly, but we can say nature is balancing both of those factors, right? Whether it's carbon dioxide or oxygen. If you are going to cut all the greens, now only animals are there. From where we are going to get our oxygen then, right? Can we say that? That's why we need to grow more and more trees. At the end of all the problems of our environmental problems, right? Solution is what? Grow more and more trees. We can say those are the green lungs, right? Why green lungs? Because they are going to provide us our oxygen, right? And for that selfish purpose also we should grow our trees.
or plants, right? So it's not only animals or human beings, they are going to respire, but also plants are respiring, and you know that process, photosynthesis, right? So we will see that it's not only in case of plants and animals, but also in case of some other organisms. While some animals resemble human beings in their techniques of respiration, some others have completely different respiratory mechanisms. Plants also have a unique way of breathing. In this lesson, we will study respiration in plants and animals in detail. Objectives. What is At our the end of this, to study that respiratory organisms, okay, or their respiratory system. That is what our objective is. Okay, and we need to understand how they are exchanging those gases, how earthworm breathe, how fish, we are already done, frogs, grasshoppers, some of the other organisms. in plants, like human beings, Different types of insects need oxygen for survival as well. Again, like human beings, they produce carbon dioxide as a waste product. But unlike human beings, insects like grasshopper, housefly, cockroaches, etc. do not have lungs. they are not consisting of lungs, because you know that if we are fully developed and our weight is also accordingly done, right? But if you are going to compare the weight of grasshopper, bees, house bees, or this cockroach, right? What do you think? Their weight is a fraction of our even hair, or sometimes one of our organ, right? Can we say that? So if that weight is like that, we cannot accommodate everything inside their bodies, right? So there we'll find out lungs are not there. The process How by they which respire- gas exchange takes place in insects is known as diffusion. direct diffusion. Diffusion means gaseous molecules will diffuse in liquid. Air enters the insect body through tiny holes present on the sides of the body. These holes are known as spiracles. Okay, so suppose if you take example of grasshopper, here we can see, if we are going to see that front side of the grasshopper, you will see there are few hole-like structures are present, and these hole-like structures are nothing but what? Spiracles. Okay, you know this spiral binding, spiral, right? There you'll find out these pores. So the same pores are there. It's not spiral, but spiracles. Depending upon that, you can remember this word spiracles. So these are pores or opening outside the body. So directly from the air, that gases molecules will just enter inside the body through this spiracle and will be used as a, they want what? Oxygen. Okay. Yes, Vida. Yes, Diana, I got it. Okay, ma'am. The spiracles open into a network of thin air tubes spread over the body of an insect. Now it's something like from all the holes, suppose consider these are the holes. Inside there are some pipe-like structure, pipelines. These pipelines are going to collect this gases or gaseous molecules, and then it's connected to the main pipeline system. Okay, this main pipeline system will further pass on that whatever gaseous molecule is there, or whatever waste material they are going to generate will once again just go through another pipeline and will just goes out of this force. Okay, we will see that exactly is the same like us, or it's from a different force we are going to see. These tubes are known as the trachea, and they facilitate gas exchange. Oxygen reaches the cells through the tracheal system, and the carbon dioxide is received from the cells by the tracheal system Same, just like us. and expelled from the insect body through spiracles. Okay? Earthworms That's it. You don't have to, study in detail. In 7th standard, it's more than enough. You just have to write down trachea and spiracles are there. Tracheas are tube-like structure, right? And this tube-like structure, they are going to pass on that oxygen further to the different parts of the body. And if it's carbon dioxide, once again, for the same way, they are going to come out of the body. Now, earthworms, those are very delicate, and you'll see that it's not only delicate structure, but you will see that lightweighted also. So how they are going to breathe, right? Because they are almost, we're going to see they are somewhere in between those soil particles, right? Soil. So they are breathing.
like insects, do not have lungs, nor do they have a nose. They breathe through their skin. Okay. They absorb oxygen from air and soil. They are breathing through their air, and that's why when you are going to touch this earthworm, no, it's quite sticky and it's moisture. The skin is moisture. Why? Because they are directly absorbing that atmospheric oxygen through their skin. They don't want any other system. Through their skin only they'll start absorbing, right? When the oxygen comes in contact with their moist skin, it breaks down. It is absorbed through tiny blood vessels and circulated throughout the body. Directly absorbed. The same blood vessels carry the carbon dioxide to be expelled through the skin. And For the an same effect- manner we are going to say they are going to release carbon dioxide out. Okay. So we can say that it is just because their skin is very moist. Active absorption of oxygen, earthworms keep their skin moist. Frogs, like human beings, have lungs. They use their lungs for breathing. But since their lungs are not well developed, they use two other types of respiration. One is buccal respiration and the other is cutaneous respiration. Buccal means mouth. Okay, buccal cavity. We're going to see that buccal cavity. You know that what is buccal cavity, right? Buccal cavity is inside the mouth. Cutaneous. Cutaneous means what? Those outer layerings or skin. Suppose our nails are cutaneous. Cutaneous means that covering or layer above the skin. Okay, that is cutaneous respiration. So they are having lungs, but also it's not sufficient and well developed. So they are going to use or utilize, you know that frogs are generally going for a hibernation period, right? Hibernation means if it's monsoon season, then only they are going to start coming out of the land. Otherwise, they'll stay there for hibernation, right? For a while, they are going to stay underground and very in inactivated position. Okay, they are going to just store that food inside their body and will start utilizing it. And in monsoon season only, they are coming out. In buccal respiration, oxygen is absorbed and the blood vessels that line the roof of their mouth expel carbon dioxide. During this process, the passage to the lungs remains closed. In cutaneous respiration, oxygen is absorbed by the network of blood vessels on their skin. This respiration is effective only if their skin is moist. This technique of Otherwise, their skin, it's not capable of absorbing something, right? Something can absorb inside when if it's liquid or if it's moist, right? If it's dry, easily you cannot absorb anything. Suppose consider if you want to dissolve or if you want to add salt in some dry substance. Is it possible to absorb that salt? No. But if it's a little bit moist, right? Or it's a liquid, definitely you can absorb it. Easily you can absorb it, right? respiration is used by frogs on both land and water. Since fish is an aquatic animal, its respiratory system is different from the respiratory system of animals living on land. Fish has gills that allow it to breathe in water, so the fish is under no compulsion to come to the surface of the water for air. They take in oxygen-rich water through their mouth and pass it over the gills. That we already seen. So we'll The gills are direct it lined now. with blood vessels Plants. which absorb the oxygen and release carbon dioxide into the water. The deoxygenated water is then expelled from the body through gills. In plants, respiration takes two different forms. One, when the pores of the plant Okay, absorb now this is important. Okay, one more we are going to study here in this respiration in case of plants. We have studied from, I think, since that 4th standard, 5th standard, if it's not 4th standard, 5th, 6th standard, right? What is photosynthesis, right? So you know that what we are going to see here, two types of respiration. So roots take up air from the airspace present between the soil particles. Here you can see these are the soil particles, and there also we know now what is soil profile. Soil profile means different components are present, out of which one component was what, beta? Air, right? So air is already present there in the underground area or between the soil particles. So it's going to absorb from roots also and from leaves also. And you know that specifically leaves are consisting of small pore-like structure, stomata, right? This is our stomatal opening, with the help of which excessive amount of water will get evaporated, as well as this is the way of respiration also.
Okay, so these are two ways of respiration in case of plants. One is Absorb underground. oxygen and release carbon dioxide. These pores are present all over the plant body and even in the roots. 2. When photosynthesis takes place. In this form of respiration, plants absorb carbon dioxide and release oxygen. Select and drag the correct option into respective box. Summary. Okay. मैम Yes, बेटा. मैम हम अगर सांस नहीं ले सकते हम तो मुंह से ले सकते हैं मैम. मैम तो शार्क और वो नहीं ले पाते तो वो क्या करते हैं मैम? वो भी मुंह से लेते हैं. Yes. गिल्स The क्या only thing करती is है? that our basic need is oxygen. If they are not going to get it, definitely it's going to choke out, right? And we Yes. cannot. Yes. So now our exercise Ma'am? part. Yes, beta. मैम पर शार्क तो गिल्स से लेती है ना ऑक्सीजन. But he is saying that his question is that if still it is not possible, then in that case, what it's going to do? Okay, if gills, if it's not possible, it's taking it from mouth only, right? But still, if it's not capable of doing so, then what will happen? Okay. Why does an athlete breathe faster and deeper than usual after finishing the race? Who will explain? Ma'am, can you repeat the question? Yes, beta. All of you, please open up your textbook. Ma'am, I have doubt. Yes, beta. Ma'am, Ma'am, I am also having doubt. Ma'am, Yes, can yes. you repeat what is meaning of spherical? Spiracles. It's spiracles, right? Okay, definitely. It's something like consider. Okay. It's something like consider we are having flute. Okay, you know that the structure of flute, beta. Flute का structure कैसा होता है? There will be one wooden stick. अब ये wooden stick पे बहुत सारे holes होते हैं, right? यहाँ पे बहुत सारे holes present होंगे. ठीक है? अब ये holes से यानी क्या वहां से air अंदर enter हो सकती है? Yes, ma'am. राइट और इसी के ऊपर उसका प्रिंसिपल ही यही है. वो कैसे काम करता है? एयर के प्रेशर से, है ना? ये जो हम उंगली दबा देगी उसके अंदर एयर नहीं जाएगी और मैम जाएगा. एक मिनट एक क्वेश्चन खत्म हो जाने दो. ठीक है जिया कौन है? ओके बेटा, तो यहाँ पर जैसे ये पोर्स या होल्स प्रेजेंट है फ्लूट में, वैसे ही जो ग्रास ऊपर है उसके बैक साइड जब हम उसको उल्टा करके देखेंगे तो वहां पे एक सॉफ्ट रीजन होता है बॉडी का. वहां पे ऐसे स्मॉल स्मॉल पोर्स प्रेजेंट होते हैं. जरूरी नहीं है कि ये हम अपनी रियल इस आईज से देख पाए. ठीक है, वो स्टडी करने के लिए हो सकता है कि हमें जरूरत पड़े किसी टूल की मदद लेनी पड़े. ठीक है, तो ये जो है वो ये फ्लूट के ऊपर जैसे ओपनिंग है वैसे ओपनिंग ही है और कुछ नहीं. बट ये वाले जो ओपनिंग है जैसे ये फ्लूट में देखो, ये वाला ओपनिंग इसी वाले चैनल में ओपन होता है. ये ओपनिंग भी जाके आगे जाके इसी वाले चैनल में ओपन होता है. देखो यहाँ पे. ठीक है, सेम चैनल में सारे ओपनिंग्स है. ये चैनल जाके फिर कहीं पे आगे मिल जाती है उनके मेन कंट्रोलर के साथ. ओके, तो उस चैनल को ट्रैक क्या बताया है और ये हो गया स्पाइरेकल. दैट्स इट. तो इसका काम क्या है? बाहर से एयर ले ली अंदर और इस एयर को पहुंचाना तो पड़ेगा बाकी पार्ट्स तक. तो उसके लिए यहाँ पे एक पाइपलाइन है. कौन सी? ट्रैक किया. तो ये मेन पाइपलाइन है जो सारे बॉडी पार्ट्स में एयर सप्लाई करेगी. ठीक है, हाँ बोलो बेटा. मितवा आपका क्या क्वेश्चन है फिर? मैम वो जब आपने हमें हम कर रहे थे तो वीडियो में जो लास्ट वाला था ना जिसमें प्लांट का बता रहे थे तो मैम तब मेरे में वॉइस नहीं आ रहा था वीडियो का. ठीक है, प्लांट्स के लिए सिर्फ दो चीज है. रेस्पिरेशन इन केस ऑफ प्लांट्स, एक तो आपको पता ही है कि लीफ से होता है. बिकॉज इन दैट लीफ स्ट्रक्चर यू नो दैट व्हाट इज प्रेजेंट बेटा. लीफ में स्मॉल स्मॉल पोर्स होते हैं. ठीक है, जहाँ पे जिसको हम बोलते हैं स्टोमेटा. ठीक है, एक तो वो रेस्पिरेशन हो गया और दूसरा होता है प्लांट के रूट्स जो अंडरग्राउंड होते हैं. अब ये प्लांट के रूट्स भी कुछ अमाउंट में गैसेस मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब कर सकते हैं क्योंकि आपको पता है कि सॉइल प्रोफाइल के मुताबिक सॉइल अंडरग्राउंड सॉइल में भी वहां पे एयर प्रेजेंट है. सिर्फ वाटर नहीं है, मिनरल्स नहीं है, बट एयर मॉलिक्यूल्स भी है. तो वहां से भी ये एब्जॉर्प्शन हो सकता है. ओके मैम. यस बेटा जिया. मैम डाउट क्वेश्चन का आंसर देना है. अच्छा, क्वेश्चन का आंसर देना है, बोलो.
मैम मुझे भी Ma'am, during the race, an Atlantic Yes. has to Athlete. run fast, so the body need more energy for running fast, and to release more energy, they have to increase means their rate of respiration will increase. Okay. Ansh, And would you like to add and something? for supplying more oxygen to the cells, so they have to breathe more and more, so their rate must be increased. Only one word is missing. Ansh, would you like to add, beta? Ma'am, break down of food. Okay, that is correct. Dia, would you like to add that word? No, ma'am. Tirth? Mm, Ma'am, can I say the whole answer? Yes, beta. When we after the rest, we breathe the fast, our and then breathe the faster and deeper than usual, because after finishing the race, our whole energy is being used, so the demand of oxygen is increased, and the oxygen is need to break down the food. Okay. ma'am, One can word I is say answer? yes, beta. Yes. Bolo. Yes, ma'am. Ma'am, during the race, the racer breathed not so deep. So because the energy, Okay. मैम Yes, beta. आपके माइक से कुछ Only अजीब सी आवाज आ रही है. मेरे बिकॉज मैम नहीं आ रही है. हाँ ठीक है बेटा सुनो एक बात सुनो सिर्फ एक बात करो एक वर्ड. एक मिनट कोई एक खत्म करो बेटा है ना आइदर अंश खत्म करो या तीर्थ खत्म करो. yes ma'am because the whole body gives energy to the running. राइट ओके सिर्फ एक वर्ड है एनारोबिक रेस्पिरेशन. ओके एनारोबिक क्यों होता है यहाँ पे क्योंकि बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है वो वहां पे फुलफिल नहीं हो पा रही है बिकॉज वो बहुत ही जल्दी फूड को ब्रेक डाउन करना पड़ रहा है एनर्जी में. ठीक है तो एनारोबिक यानी जो मसल्स के अंदर उस टाइम पे एनर्जी फॉर्म पड़ा है वो कन्वर्ट होगा लैक्टिक एसिड में और हमें पता है कि लैक्टिक एसिड बॉडी के लिए ठीक नहीं है उसे जल्दी से रिमूव करना पड़ेगा. ये सारा क्वेश्चन इसमें नहीं आएगा बट वो एक प्रोसेस होती है. ठीक है सेकेंड सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन एनारोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन. एक दिया आप बताओगे सिमिलैरिटीज और उसी के सामने उसका डिफरेंस ध्वनित आप बताओगे. ठीक है बाद में मैंने तो फिफ्थ के लिए क्वेश्चन. यस बेटा बोलो. मैम मैंने फिफ्थ के लिए किया था. हाँ बोलो बेटा फिफ्थ के लिए. यस मैम. फिफ्थ बाद में चलो कौन मितवा एंड दिया आप दोनों ले लो बेटा. मैम तो Yes, मैं ma'am. एरोबिक रेस्पिरेशन का बोलूं. हाँ बोलो. मैम ग्लूकोज इज completely broken down into carbon dioxide and water along with a release of a high amount of energy. ओके मैम सिमिलैरिटीज में दोनों रेस्पिरेशन में ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इनटू द सेल इज कॉमन एंड डिफरेंसेस में एनारोबिक में इन द एब्सेंस ऑफ एयर एंड एरोबिक में इन द प्रेजेंस ऑफ एयर and the byproduct of the aerobic respiration is carbon dioxide and water and in anaerobic it is lactic acid and alcohol. परफेक्ट एक और चीज बच जाएगी एग्जांपल्स देने होंगे कहाँ पे एरोबिक और कहाँ पे एनारोबिक होता है. राइट मितवा बताओ बेटा एग्जांपल बताओ. मैम किसका एग्जांपल. मैम कैन आई से तीर्थ. एरोबिक एनारोबिक जोर से बोल एरोबिक और एनारोबिक एग्जांपल्स बताओ. ठीक है मैम सोच के बताओ. मैम कैन आई से तीर्थ. हाँ तीर्थ बोलो बेटा. Yes, मितवा ma'am. आप नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेना. ठीक है Sleeping, our body do aerobic respiration. During running or hard work, our body do anaerobic respiration. करेक्ट सिर्फ ह्यूमन बीइंग के केस में नहीं बेटा हम बाकी केस में भी बता सकते हैं क्योंकि वही एग्जांपल वहां पे सही रहेगा जैसे हमने यीस्ट में देखा था. And yeast also.
करेक्ट बेटा. Yes, Ma'am, madam. can you tell which question I was left the meeting? Okay. Right now we are Answer. on the same question. Ansh, don't worry. Fine. With one Ma'am, next question ले लो बेटा. मैम सिमिलैरिटीज तो रह गई ना पर अभी. सिमिलरिटीज में बताया ना, एरोबिक एंड एनारोबिक है, एयर कॉमन रहेगा, और क्या चीजें कॉमन रहेगी कि ब्रेकडाउन ऑफ Breaking फूड और down of एनर्जी तो होगा ही बेटा. Down of food. Okay, ma'am, मैं thirdly, why do we often sneeze while we inhale a lot of dust-laden air? Ma'am, when we inhale a dust-laden air, dust particles are captured with the nostril. करेक्ट. Sometimes they get past the nostril hair in the nasal cavity and irritate the lining of the cavity. As a result, Correct. sneezing expels these foreign particles for the inhale air and dust-free clean air enters in our body. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. राइट. ओके. ध्वनित, अभी भी फिफ्थ क्वेश्चन ही बताना है या फोर्थ बताना है बेटा? मैम फिफ्थ वाला. ओके ओके, चलो वेट करो. हाँ हाँ ठीक है बेटा, फिफ्थ आप ले लेना. अब यहाँ पे 3 टेस्ट ट्यूब हमें लेनी है, एक बार देख लो, ठीक है, बाद में आप बताना जो भी आंसर हो. यहाँ पे हमें 3 टेस्ट ट्यूब्स लेनी है. पहले तो वो 3 टेस्ट ट्यूब्स के अंदर हमने क्या किया है, वी आर गोइंग टू फिल इट 3/4 यानी उसका 3/4 हम फिल करेंगे, और फिर उसको हमने किस में भरा है, ABC लेबलिंग करना है, A, B and C. ठीक है, ये हो गया A, B and C. Keep a snail in a test tube A. एक के अंदर हमें टेस्ट ट्यूब रखना, इसके अंदर स्नेल रखना है. ओके, देन सेकंड के अंदर वाटर प्लांट रखना है, और थर्ड के अंदर दोनों रखना है. Which test tube would have the highest concentration of carbon dioxide? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है. कहाँ पे सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा? मैम ठीक है. हाँ, पहले में क्या था? क्या ए में क्या बनना था मैम? वाटर हाँ प्लांट. मैं बता रही. ए के अंदर स्नेल है, वो स्नेल आता है ना ऐसे कोकलिया वाला, जिसके एयर के स्ट्रक्चर में इसके ऐसे आईज होते हैं, पता है, ये स्नेल. यस मैम. हाँ, फिर दूसरे में प्लांट रखा है, और तीसरे के अंदर दोनों का कॉम्बिनेशन रखा है. तो मैम किसके पर अंदर क्या? मैम पर कुछ स्नेल ही वाटर में रह पाते हैं ना. हाँ, बट यहाँ पे क्वेश्चन ये नहीं है. क्वेश्चन ये है कि किसके अंदर सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन होगा. अब जहाँ पे प्लांट है वहां पे तो कम ही होगा, तो बी तो कैंसिल ही हो जाएगा. अब सी में दोनों का कॉम्बिनेशन है. कहाँ पे स्नेल कैसे करता है बेटा, स्नेल का रेस्पिरेशन? हाँ बोलो बोलो. मैम ए आएगा स्नेल वाला. यस क्यों ए आएगा बेटा? मैम रीजन मैं बताऊं? स्नेल जो ए वाले में है वो सिर्फ ऑक्सीजन लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड देता ही जाएगा. करेक्ट. और यहाँ पे क्या होगा, फिर सी वाला टेस्ट ट्यूब और मैम उसमें जो स्नेल कार्बन डाइऑक्साइड देगा वो प्लांट ले लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा. हाँ, और मैम वो है ना? ऑक्सीजन प्लांट रिलीज करेगा. ठीक है, ऐसे और भी क्वेश्चंस बना के आपको प्रैक्टिस करने के लिए दे दिए जाएंगे. ठीक है, गुड गुड. चलो फिफ्थ क्वेश्चन स्टार्ट करो ध्वनित. Yes, ma'am. In cockroach, air enters the body through, ma'am, spiracles, ma'am. Spiracles. Ma'am, B वाला तो बोलो. कॉकरोचेस के अंदर, हाँ बोलो बोलो. During heavy exercise, we get cramps in legs due to the accumulation of lactic acid, ma'am. आप पूछ रहे हो या बता रहे हो? हाँ, लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेशन यानी जमा हो जाता है. जमा होता है क्योंकि वहां पे एनाएरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है. एनाएरोबिक रेस्पिरेशन की बाय प्रोडक्ट लैक्टिक एसिड. ओके. हाँ, फिर नेक्स्ट नॉर्मल रेंज ऑफ ब्रीदिंग. मैम 15 to 18. एवरेज एडल्ट के अंदर 15 to 18. करेक्ट. और अगर न्यूबॉर्न बेबी है तो कितनी हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी. 30 to 33. करेक्ट. 40 to 33, 14 to 33. ड्यूरिंग एक्सहेलेशन द रिब्स, एक्सहेलेशन यानी आप बाहर थ्रो कर रहे हो, तब रिब्स कहाँ पे आ जाएगी वापस? मैम नीचे, डाउनवर्ड्स. मूविंग डाउनवर्ड्स. करेक्ट. मूव डाउनवर्ड. करेक्ट. मैम पर जैसे मतलब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेंगे तब तो वो मतलब ऊपर जाएगी ना. कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करोगे तब वो रिलैक्स कंडीशन में, पहले जो ऊपर उठ रही थी अब वो नीचे आ जाएगी, मूविंग डाउनवर्ड्स. ओके मैम. यस, किसके साथ रिलेट कर सकते हैं हम? फर्स्ट वाला मैं बता रही हूँ. चलो ठीक है, एल्कोहल. मैम सही है एल्कोहल या गलत है? सही है. क्योंकि ये एनाएरोबिक रेस्पिरेशन करता है. सही है. प्रोडक्ट क्या है बेटा?
एल्कोहल है, यीस्ट के केस में एल्कोहल, ठीक है। फिर डायफ्राम क्या है? डायफ्राम कहाँ पे प्रेजेंट है? मैम पर्दा पड़ रहा है मैम, आपकी आवाज के साथ। नो मैम क्या आपकी हो रहा है? बेटा किसी के बैकग्राउंड में से एक काम करो, पहले सब म्यूट कर दो, प्लीज म्यूट योरसेल्फ ऑल ऑफ यू फॉर अ व्हाइल, ठीक है। अब जिसके बैकग्राउंड में से आवाज आ रही है बेटा वो अपने आप को भी ऑन मत करो, ठीक है। अब बताओ डायफ्राम कहाँ पे जाएगा? डायफ्राम में अर्थवॉर्म तो इससे रिलेटेड नहीं है, गिल्स भी नहीं है। किसी तो तेरे माइक में से ही आवाज बेटा आ किसी रही का है। माइक वर्क नहीं कर रहा है, वो बंद कर दो अपने आप को, ठीक है। तो डायफ्राम जाएगा चेस्ट कैविटी, ठीक है। डायफ्राम एक टाइप का क्या है? मसल जो चेस्ट कैविटी में प्रेजेंट है, कैन वी से दैट, क्योंकि ये सारी बाकी चीजें उससे रिलेटेड नहीं है। देन स्किन, स्किन में क्या आएगा? अर्थवॉर्म। स्किन में अर्थवॉर्म आएगा, Earthworm. स्किन से ब्रीथ कर सकता है, ये आ सकता है। फिश में तो गिल्स, ये तो क्लियर है। Yes, ma'am. लीव्स में frog में? स्टोमेटा, टोमेटा, अच्छा, टोमेटा। टोमेटा। तो फ्रॉग lungs, में क्या रह गया? लंग्स एंड स्किन, lungs and skin. करेक्ट, ठीक है, इजी है ये। Yes, ma'am. हाँ मैम, मैम इजी है। Okay, fine. True and false. During heavy exercise, person slow down the breathing rate. ये तो गलत ही है, ठीक है, ये सबको पता है। एक्सरसाइज our डिमांड बढ़ जाती है breathing rate increases. और एनारोबिक रेस्पिरेशन। Next, plants carry out photosynthesis only during the day and respiration only at night. ये गलत है। respiration on day also. Plants carry out photosynthesis only during the day and respiration only at फर्स्ट night. वन का आंसर क्या था? ट्रू, ये फॉल्स है बेटा, फर्स्ट का। अब सेकंड में प्लांट का जो रेस्पिरेशन है वो जनरली हमें लगता है कि फोटोसिंथेसिस मॉर्निंग में करता है, उस टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन रिलीज करता है। शाम को वो रेस्पिरेशन करता है जब वो भी ऑक्सीजन लेता है और कुछ अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, क्योंकि उस टाइम पे सन नहीं होता है ना। तो ये ट्रू हो जाएगा या फॉल्स हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। सही तो लिखा है बेटा, प्लांट्स कैरी आउट फोटोसिंथेसिस ओनली ड्यूरिंग द डे। रात को फोटोसिंथेसिस करता है क्या? नो मैम, नहीं होगा इसीलिए नहीं करेगा। करेक्ट, इसलिए बोला है रेस्पिरेशन नाइट में। रेस्पिरेशन किसको बोलते हैं हम? ऑक्सीजन अंदर लेना। तो प्लांट्स भी ऑक्सीजन अंदर लेते हैं कब? नाइट टाइम। रेस्पिरेशन तो सुबह और रात दोनों पर करते हैं। और इसीलिए बोला जाता है कि हमें घर के अंदर प्लांट्स नहीं रखने चाहिए, रूम के अंदर, ठीक है। Frogs breathe through their skins as well as their lungs. True. फ्रॉग्स है ना, मैं कॉकरोच समझा। The fishes have lungs for respiration. False. Size of chest cavity increases during inhalation. True. Okay, अब आ गया नीचे फेवरेट पार्ट आपका, ये आप आराम से करते रहना, वो बाद में, पहले यहाँ पे हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं, ठीक है। Mountainous carry oxygen with them because at a higher altitude, suppose more than 5 kilometers, there is no air. And then we are having options. The amount of air available to the person is less than the available on the ground, or the temperature of air is higher than that of the ground, or pressure of air is higher than that on the ground. Yes, बेटा बताओ जो भी हैंड रेज कर रहा है, टर्न बाय टर्न। दिया बताओ बेटा, दिया। When the answer is B, the amount of air available to a person is less than that available on the ground. Correct. Because यानी आप higher जैसे altitude air Correct. available is less than. यस, यानी आप जैसे हायर एल्टीट्यूड यानी हाइट पे जाओगे तो एयर कम होती जाएगी और प्रेशर वहां पे बढ़ता जाएगा, और वहां पे एटमॉस्फेरिक इफेक्ट यानी कि ऑक्सीजन भी कम होगा। इसलिए जो भी माउंटेनियर्स यानी जो बड़े बड़े पहाड़ जैसे कि माउंट एवरेस्ट, ठीक है, जब वो क्लाइंबिंग करने जाते हैं तब उनको ऑक्सीजन बॉटल कैरी करके चलना पड़ता है, क्योंकि वहां पे एयर बहुत ही थिन और वहां पे ऑक्सीजन की क्वांटिटी मात्रा भी बहुत कम हो जाती है।
इसलिए छोटे से ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी अवेलेबल है। अगर आपने कभी भी हिमाचल वगैरह विजिट किया होगा, ऐसी कोई जगह पे ट्रैक वहाँ पे है। तो पता ही होगा। ठीक है, सो एक और क्वेश्चन बच जाएगा हमारा ऊपर, एंड दैट इज यस दिस वन, एयर ट्यूब्स, द एयर ट्यूब्स ऑफ इंसेक्ट्स, इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रेकिया। ठीक है, तो ये बाद में आप मार्क कर लेना। स्केलेटल स्ट्रक्चर सराउंडिंग चेस्ट कैविटी, रिब केज, देन मस्कुलर फ्लोर ऑफ चेस्ट कैविटी, डायफ्राम, tiny pores on the leaf stomata, smaller opening on the sides of the insect, spiracle, then respiratory organs of human beings, lungs, but main lungs हो गए, opening through which we inhale, nostrils, anaerobic organisms में आप yeast लिख लो, और organism with tracheal system में humans, things भी आ सकते हैं, but tracheal whole system है। ठीक है, तो वहां पे कॉकरोच भी आ सकता है, ट्रैकियल सिस्टम होती है वहां पर भी। ठीक है, ह्यूमन बींग्स भी आ सकते हैं। एनाएरोबिक ऑर्गेनिज्म में क्या आएगा? यीस्ट बेटा, यीस्ट। ओके मैम मुझे डाउट है। हाँ बोलो बेटा। मैम स्मोकिंग से लंग्स क्यों डैमेज होते हैं? हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन। अब स्मोकिंग से होता ये है, जैसे कि ये हमारे लंग्स है, ठीक है, पेयर ऑफ लंग्स। अब स्मोकिंग के अंदर टाइप्स है, सिगरेट होता है, नॉर्मल सिगरेट होती है, और एक जो मॉडर्न वाली सिगरेट होती है वो होती है। ठीक है, जो देसी वाली सिगरेट होती है और जो अभी यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं, उसके अंदर जो निकोटीन होता है, दोनों में निकोटीन ही होता है, तंबाकू वन टाइप ऑफ, ओके, जो अच्छे से ग्रो होता है हमारे इस एरिया में, गुजरात में काफी जगह पे वो ग्रो होता है। अब ये जो यहाँ पे सब्सटेंस है, अच्छा ग्रो होता है वो। सॉरी बेटा मैम छत्तीसगढ़ में बहुत होता है मैम वो। करेक्ट। मैम तम्बाकू प्लांट से ग्रो होता है ना? सॉरी बेटा मैम तम्बाकू प्लांट से ग्रो होता है मतलब? हाँ, वो प्लांट्स के ही पत्ते होते हैं, जिसको हम जो नॉर्मल हमारी देसी जो स्टाइल है सिगरेट, राइट, वो फाइन। अब उसको बर्न किया जाता है। अब उसका बर्निंग हमारे सिस्टम में लेना, ये कुछ ऐसा है कि हम पॉल्यूटेड एयर को हमारे सिस्टम में ले रहे हैं। ठीक है, लंग्स के अंदर अगर हम ऐसी पॉल्यूटेड सी एयर ले रहे हैं, पॉल्यूशन यानी क्या, हार्मफुल केमिकल सब्सटेंसेस, तो वो चाहे नेचर या किसी प्लांट से आए या फिर किसी केमिकल सब्सटेंस या व्हीकल से आए, वो तो हमारे लिए तो हार्मफुल ही है। अब क्योंकि आपके लंग्स जो है, इट्स कंसिस्टिंग ऑफ व्हाट बेटा, लंग्स के अंदर हमारे पास स्मॉल स्मॉल ऐसे पॉकेट जैसे सेल्स है ना, जो हमने अमेज़न वाले किए हुए हैं, राइट, एल्वियोलाइज, ब्रोंकियल्स डिवाइड होते हैं इस एल्वियोलाई। अब समझ लो कि जैसे कफ के टाइम पे मैंने बताया था कि वो ये वाला सेल पूरा म्यूकस से भर जाता है, इसलिए हमें हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में कफ फील होता है ना, कि कफ है, वो सिर्फ रेस्पिरेटरी ट्रैक में। और वहां पे ट्रैक, क्योंकि आपको पता है कि हमारे ये सिस्टम और जो हमारी फूड पाइप जा रही है, वो दोनों साथ में पैरेलल जा रही है। सो कई बार वो कफ ट्रांसफर हो जाता है हमारी फूड पाइप में, है ना, सो वो पैसेज है। बट ये हो गया कफिंग के टाइम। अब क्या होगा जब ये हार्मफुल केमिकल सब्सटेंसेस आपके लंग्स में जाएंगे? तो ये कुछ ऐसा है जैसे हमारे घर की बाहर की दीवार, राइट, ये जो वॉल्स है, दे आर गोइंग टू गेट अफेक्टेड बाय आउटर एनवायरमेंटल फैक्टर्स, और वो धीरे धीरे डैमेज होती जाती है। तो यहाँ पर भी ये जो सेल्स है वो किससे डैमेज हो रहे हैं? आप जो आप सिगरेट का स्मोकिंग कर रहे हो इससे, और वो ज्यादा इफेक्टिव इसलिए है क्योंकि वो गैसेस फॉर्म में आपके अंदर जा रहा है। अब वो हमारे सिस्टम के बिल्कुल खिलाफ है, अल्कोहल और सिगरेट। हमारी बॉडी उसके लिए मना ही कर रही है, बस स्टिल वी आर टेकिंग इनसाइड इट। वो सुटेबल ही नहीं है हमारे लिए, स्टिल वी आर टेकिंग इट। सुटेबल नहीं है यानी, आप एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं, ये लंग्स के हमारे सेल्स है, ठीक है, जो कि है एल्वियोलाई। ठीक है, अब समझ लो कि हमारे पास कंसंट्रेटेड एसिड है, ऐसे समझते हो ना, जो हम मार्केट में से भी खरीदते हैं, राइट। अब ये एसिड ऐसा होता है कि गलती से उसका हम कॉक ओपन भी कर देना, लीड, तो उसमें से बहुत ही डेंजरस वेपर निकल रही होती है, यानी वो इतना डेंजर है, गलती से हम टच कर लेंगे तो हमारे स्किन के साथ बाहर आएगा। अगर ये पोर कर लिया जाए हमारे सेल पे तो क्या हालत होगी? वो पूरे
डिसॉल्व हो जाएंगे पूरे के पूरे, क्योंकि हमारी बॉडी डेलिकेट ऑर्गन है, पर क्योंकि वो कंसंट्रेटेड है तो डायरेक्टली हमें उसी टाइम इफेक्ट दिखा देंगे। पर ये वाला जो फॉर्म जा रहा है वो धीरे धीरे आपके सेल्स को डैमेज कर रहा है, ठीक है। केमिकल हार्मफुल सब्सटेंसेस जैसे लैक्टिक एसिड अगर जमा होता जाएगा बॉडी में तो इट्स नॉट अ गुड थिंग, टॉक्सिक है। वैसे यहाँ पे अगर पॉल्यूटेड एयर या फिर सिगरेट स्मोकिंग, राइट, द सिगार और देसी सिगरेट, if because it's consisting of the tobacco, nicotine, and those are the materials we can say they are harmful for our body, वो हार्मफुल इफेक्ट करते हैं, फाइन। उसकी जगह पे अगर आप स्मोक लेते हो अजवाइन का या किसी ले लो आप सिनेमन का, तो वो बेनिफिशियल है, आपके ट्रैक को वो क्लीन कर सकता है, क्योंकि उसके वो इफेक्ट है ना, उसके वो गुण है, राइट। इसके वो ड्रॉ इसके ड्रॉबैक ज्यादा है, राइट। साइड इफेक्ट। यस बेटा। मैम मैंने एक वीडियो में देखा था कि जो सिगरेट होती है उसमें मैम डिटर्जेंट पाउडर और सेल का जो पाउडर होता है वो भी ऐड करते हैं। ओके ठीक है, और कोई क्वेश्चन बेटा? नो मैम। हमें जो एड बताते हैं तो उसमें कहता है नहीं कि तम्बाकू और सिगरेट हमारी सेहत के लिए हानिकारक है, तो मैम जो लोग तम्बाकू लेते हैं तो मैम उन्हें फेस पे कुछ हुआ होता है, तो वो भी इसीलिए ही हुआ। दैट्स अ कैंसर। ओके, कैंसर बेटा वो समझ लो कि अगर आपके किसी बॉडी में, देखो ये सब्सटेंस ऐसा तो है नहीं, जो भी आप तंबाकू खाते हो क्या वो सिर्फ आपके स्टमक तक लिमिटेड है? आपके स्टमक को ये नहीं पता है कि ये खराब चीज है, वो तो क्या करेगा, उसका काम है डाइजेस्ट करो और बाकी के सारे बॉडी पार्ट में पहुंच जाओ, तो वो सारे बॉडी पार्ट में पहुंचता है। अब किसी जगह पे आपका सेल ज्यादा डैमेज है तो वहां पे कैंसर के सेल ग्रो करेंगे। कैंसर यानी एक टाइप का उस पोर्शन में सड़ना स्टार्ट हो जाएगा, यानी उस पोर्शन में अब आपका बॉडी का कोई कंट्रोल ही नहीं है, कैंसरस सेल का कंट्रोल, ठीक है। और मैं ना बहुत लोग सिगरेट से मीन्स बिजनेस भी करते हैं, जैसे कि जो वेस्ट सिगरेट्स होती है उसके अंदर का जो कुछ कचरा होता है ना, उसको गीला करके फिर उसको सुखाते हैं ना, तो उसको टेडी बियर के अंदर की जो रुई जैसी होती है ना, उसको वैसे कन्वर्ट कर दिया जाता है। उसके अंदर के और उसके पेपर को मिक्स कर देते हैं पहले वो लोग पानी में, फिर उसको अच्छे से सुखाने के बाद वापस उसको एक बार गीला करके ना उसको एक शेप दे देते हैं, फिर बाद में उसको कुछ एक वैक्यूम क्लीनर जैसा कुछ आता है उसके अंदर डाल के उसको वॉश करते हैं और अच्छे से, और तब जाके वो ऐसा रुई जैसा स्ट्रक्चर बनता है। वो एक्चुअली रुई स्ट्रक्चर नहीं है, बट हाँ सिगरेट के अंदर काफी मटेरियल्स होते हैं। ये बहुत ही अच्छा है बेटा कि आपने ऑब्जर्व किया है, ठीक है, और आज आपने शेयर किया यहाँ पे, सो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग विथ अस, राइट। हाँ ये सही बात है, और इसीलिए ऐसी चीजें हमें अंदर अपने बॉडी में ऐड ही क्यों करनी है ना। एक टाइम आप पिज्जा खा लो, डबल चीज खा लो, जो उसके अंदर कार्बन होते हैं छोटे छोटे जो इसलिए हमारी बॉडी को डैमेज करते हैं, वो एक एक्सपेरिमेंट में पता चला। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। स्पेसिफिकली अगर मैं केमिकल सब्सटेंस की बात करूं मैम, अरे बेटा खत्म तो करने दो, आप सुन रहे हो कि कन्वर्सेशन चल रहा है दो लोगों के बीच में फिर भी। हाँ बोलो बेटा बोलो। मैम मैम आप एक बार रिपीट करो ना, उसने क्या बोला, उसकी वॉइस ब्रेक हो रही थी। ठीक है कोई बात नहीं, वी विल रिवाइज, बट अभी के लिए वी नीड टू जस्ट स्टॉप, फाइन। नेक्स्ट सेशन में सारे क्वेश्चंस ले लेंगे, क्वेश्चंस तो नहीं है, ये वाली प्रोसेस फिर से ले लेंगे, ठीक है। मित्वा वनित दोज हु आर रेजिंग हैंड्स बेटा। मैम एक मिनट मेरी बात सुनो ना मैम। हाँ बोलो बेटा। मैम वो कैंसर होते हैं मैम, बहुत टाइप में होते हैं मैम, माउथ कैंसर, हाँ। ब्रेन कैंसर, लिवर कैंसर में करेक्ट बहुत करेक्ट, सारे ब्लड कैंसर बहुत सारे होते हैं, राइट। ओके चलो ठीक है, बाय ब्रेन में बेटा। तो एक और होता है ट्यूमर, तो बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। ओके बाय मैम। बाय मैम। बाय मैम।
वही ना, तो वो मैम ने जो क्वेश्चन नंबर 2 था 13.2 में, वो उसके जो बाकी थे उसमें मैम ने कहा था कि मैं आज कराऊंगी। हाँ हाँ, मैम ने ऐसा बताया कि थर्ड फोर्थ करना है, सेकंड में आज कंटिन्यू करवाऊंगी। हाँ, मेरे को भी ऐसा लगा, इसलिए मैंने कहा कि मेरे को लगा है फिर सच है। हाँ हाँ। और मैम ने 9th भी सॉल्व नहीं करवाया था। हाँ, नहीं करवाया, मुझे पता है वो तो। मैम आप श्लोक को अंदर ले लो ना मीटिंग में। हाँ मैम, श्लोक को अंदर ले लो ना, उसका मैसेज आया।
मैम श्लोक मैसेज कर रहा है कि आपने मीन्स उसको अंदर नहीं लिया अब तक। मैम श्लोक को अंदर ले लेना मैम। मैम मैम वेदांत हाँ बोल। मैम कब आएगी? मुझे क्या, मेरे को लगा कि तेरे को पता होगा, तू एडमिन है ना।
Good evening, ma'am. 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 मेरा कौन होस्ट बन के बैठा था इधर? Ma'am, SPGT भोपाल. ठीक। मैम एसपीजीटी से मैम थे ना, वही बैठे थे. मैम आपने होमवर्क दिया था. यस मैम. मैम क्वेश्चन 3 Yes, और ma'am. 4. 13.2 का क्वेश्चन 3 और 4. का 13.2 का मैंने होमवर्क में दिया था। नहीं, पहले क्वेश्चन नंबर 2 के कुछ जो रिमेनिंग सम्स थे वो पहले कर लेते हैं। मैम ने 3 4 Okay, ma'am. मैम मुझे एक डाउट है. हाँ बोलो। मैम वो क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें जो टी वाला है ना, बेटा 3 मैं कराऊंगी तब डाउट करना ना। मैंने क्या बोला अभी सुना तुमने? मेरे को बताओ मैंने क्या बोला तुमने? मैम क्या बोला मैंने अभी? मैम मुझे लगा कि आप वो बाद में नहीं कराओगे. मैंने अभी क्या बोला वो मेरे को रिपीट करो, मेरे को पता चले ना तुम कितनी सुनते हो मेरी बात। मैम वो आपने कहा कि क्वेश्चन नंबर 2 अभी करा रही हो, बाद में 3 कराऊंगी. ऐसा बोला मैंने? वो मतलब ऐसा नहीं सुना ना? क्वेश्चन नंबर 2 के रिमेनिंग सम्स कंप्लीट करेंगे और फिर क्वेश्चन नंबर 3 और 4 करेंगे। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 2 के रिमेनिंग सम्स में कौन सा आता है? क्वेश्चन नंबर 2 में मैम 9. मैम 3 और 4 पहले तो 4 करेंगे। 3 इन 4 का 3 into 7 square 11 power 8 21 11 power 3। अब देखो 3 के तो कोई फैक्टर नहीं होता तो 3 ही रहेगा, 7 रहेगा, 11 भी रहेगा, क्योंकि कोई फैक्टर्स नहीं है। 21 के फैक्टर्स होते हैं 3 7 का 21 मतलब 3 into 7। अब देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ऊपर मतलब 1 1 1 ऐसे लिख देना। कोई पावर नहीं है मतलब 1 है। अब सॉल्व करते हैं। देखो इधर ध्यान से बड़ा 3 पावर है 1, ऊपर कोई दूसरा 3 है? No, ma'am. No, ma'am. नीचे है? Yes. यस मैम. तो डिवाइड में तो उसका पावर क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्ट। 7 उसका पावर है 2, फिर नीचे एक 7 है डिवाइड में, इसलिए वो हो जाएगा -1। 11 पावर है 8, फिर नीचे जो है वो ऊपर जाके हो जाएगा माइनस। तो ये आ गया 3 पावर 0 7 पावर 1 11 8 minus 3 is 5। मैम आपकी आवाज बार-बार वो आ रही है मैम. एनीथिंग पावर 0 मैम हो गया। दिस इज योर आंसर। अगर 1 नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, 1 मल्टीप्लाई में ही है। मैम हाँ देवांश। मैम आपने जो होमवर्क दिया था ना मैम वो मैंने कर दिया है मैम, तो मैम जगह नहीं है। अभी वो चीज डिस्कस नहीं करी ना देवांश। मैंने क्या बोला? मैम वो नहीं बोल रहा हूँ। क्या बोल रहे हो? मैम क्वेश्चन 2 के जो अभी बाकी के सम्स आप करवा रहे हो ना मैम, तो मैंने उसके मतलब जगह नहीं है मैम, तो जो 3 और 4 क्वेश्चन आपने दिए थे उसके बाद कर दूं? ठीक है, कोई बात नहीं। मैम मुझे ये सब पता नहीं चला। 21 क्या होता है? 21 के फैक्टर्स क्या होते हैं?
अंश 21 के फैक्टर्स क्या होते हैं? यस मैम। यस मैम नहीं होता है बेटा 21 का फैक्टर। नो मैम। हाँ, मैम 21 के फैक्टर्स क्या होते हैं अंश? मैम पता नहीं चल रहा आप क्या बोल रहे हो। अभी भी पता नहीं चल रहा मैं क्या बोल रही हूँ। मैं बोल रही हूँ 21 के फैक्टर्स क्या होते हैं। आई एम आस्किंग यू दैट। मैम किसी का माइक से बहुत नॉइज आ रहा है। हाँ मैम। बोलो अंश। अंश Ansh, I'm talking to you. चलो नेक्स्ट सम। फोर्थ के बाद कौन सा सम था? मैम वो मैम मैंने कहा था ना 3 भी बाकी है मैम। यस मैम 3 भी बाकी है। बेटा 3 बाकी है पहले। यस मैम। यस मैम बाकी है। 25 पावर 4 डिवाइड 5 पावर 3। ओके, अभी डिवाइड में है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो गए, बट बेस क्या होने चाहिए? सेम। और यहाँ पे बेस जो है वो सेम नहीं है। 25 पावर 4 डिवाइड 5 पावर 3, बट बेस क्या होने चाहिए? सेम। कोई हम पावर को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ नहीं है सेम, तो सेव करने पड़ेंगे। तो 25 को लिखेंगे 5 पावर 2। लिख सकते हैं 25 को 5 पावर 2, राइट? यस मैम। उसके ऊपर 25 का पावर क्या है? 4। तो मैंने 25 को लिख दिया 5 पावर 2। 25 मतलब 5 into 5, तो 5 पावर 2। ये 25 हो गया, जो ब्रैकेट में वो 25 है, और उसके ऊपर पावर क्या है? 4 डिवाइड 5 पावर 3। तो 5 अब ब्रैकेट के अंदर एक है, ब्रैकेट के बाहर है। 2 4 8 डिवाइड 5 पावर 3। अब हो सकता है सॉल्व? यस मैम। यस मैम 5⁸ minus 3। मैम 5 मैम 5 पावर 5। 5 पावर 5। चलो क्वेश्चन नंबर 9। फोर पावर 3 a पावर 3। तो देखो ऊपर नीचे बेटा ये दोनों सेम बेस में है, तो ये दोनों सॉल्व हो जाएंगे। ये a का पावर 5 और नीचे डिवाइड में a का पावर 3। ठीक है, तो ये दोनों तो सॉल्व हो जाएंगे, ये तो वैसी कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों नहीं सॉल्व होंगे, क्यों? क्योंकि ये 2 है, इसका बेस 2 है, और नीचे जो है उसका बेस 4 है, तो मेरे को इसको सेव करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो इसको ऐसे लिखते हैं 2 पावर a पावर 5, फिर आता है 4। 4 को आई कैन राइट डाउन 2 पावर 2, 2 का स्क्वायर, ऐसे 2 पावर मैम ब्रैकेट में 3, ब्रैकेट के बाहर फिर 3। 4 को हम 2 पावर 2 लिख सकते हैं ना? यस और नो एवरीबॉडी? यस मैम। यस मैम। तो ये 4 हो गया, और 4 का पावर क्या है? 3।
So this is 2 का power 8, a का power 5, 2 3s are 6, a का power 3. अब देखो, अब हम इन दोनों को भी सॉल्व कर सकते हैं और इन दोनों को भी कर सकते हैं क्योंकि दोनों के बेस सेम हो गए। तो यहाँ पे दोनों बेस सेम, तो 8 - 6, यहाँ पे a बेस सेम, आंसर is 2 का पावर 2 into a का पावर 8 - 6 कितना होता है 2, 5 - 3 क्या होता है 2. यस इसको एक और लॉ भी लग सकता है इधर, बताओ क्या? मैम वो 2 में जो है ना वो दो है मैम, 2 है ना मैम, उसको माइनस कर देंगे। इसको माइनस कर दो मैम, सेम पावर 2 और a पावर 2 को माइनस कर देंगे मैम, वो जो पावर है ना उनको मैम। क्यों करूँ? पावर माइनस तब होता है जब बीच में डिवीजन होता है, यहाँ पे डिवीजन है बीच में? नो मैम, तो प्लस हो गया मैम। प्लस तब होता है जब बेस सेम होते हैं, बेस सेम है, दोनों के पावर सेम है, बेस सेम नहीं है बट पावर दोनों के क्या है सेम है। तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 into a और बाहर लिख सकते हैं 2। कॉमन पावर, जो पावर सेम था ना उसको बाहर निकाल दिया और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 into a होता है 2a। आंसर मैम आपकी आवाज बार बार लो जा रही है मैम, और फिर हाई आपको प्रॉब्लम होगी मेरी आवाज से? नो मैम, नो मैम अच्छे से इट इज क्लियर। परफेक्ट है। मैम वो मैंने कहा था ना कैलोरेक्स में 6 चैप्टर कंफर्म है कि नहीं, तो मैम वो कंफर्म हो गया है, आने वाला है। मैम हमारी सिलेबस दे दिया एग्जाम का मैथ्स का। मैम वो सम बाकी था। क्वेश्चन नंबर 9, अच्छा 9 हो गया, और कौन सा बच रहा है? 11। मैम अब 11। 4 power 5 a 8 b power 3, इसके बीच में कुछ साइन नहीं, मतलब ये भी मल्टीप्लाई है। 4 power 5 a power 5 b power 2। देखो यहाँ पे दोनों के बीच में मल्टीप्लाई नहीं दिया बट मल्टीप्लाई है, ये इसको तुम मल्टीप्लाई बीच में लगा सकते हो, लगाना। ओके, तो देखो 4 कॉमन बेस, पावर डिवाइड में है तो माइनस होगा, 8 ऊपर नीचे है तो माइनस, b ऊपर नीचे है तो माइनस, -2, ये हो गया 0 3 and 1। 3 पावर 0 हो गया 1, तो ये चला गया, क्या बचा a पावर 3 और b। ऊपर 1 नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, ये ऊपर अगर हम 1 ना लिखे तो चल जाए। एक भी नहीं थे मैम, सब हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। यस वन। मैम वो नहीं, मेरे को डाउट था मैम, इसलिए मैम। किसमें मैम वो डाउट जो, है? यस मैम, वो a पावर 3 है मैम, तो 1 ना लिखे तो चलेगा? b के ऊपर 1 नहीं लिखोगे तो चलेगा, साइड में भी 1 है ना मैम, 4 पावर। हाँ वो भी नहीं लिखोगे तो भी चलेगा क्योंकि 1 से तो कुछ भी मल्टीप्लाई होता है, तो कुछ और मैम वो नंबर a पावर 3 के बीच में मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया मैम?
क्योंकि ऐसे ही लिखते हैं, अगर मेरे को ऐसा लिखा हो x मल्टीप्लाई y तो इसको मैं x y, x मल्टीप्लाई z लिखा हो तो इसको x y z लिखते हैं। ओके मैम। मैम मतलब आंसर तो मल्टीप्लाई होगा ना? हाँ मल्टीप्लाई होगा। ओके मैम। Question number 3, say true or false and justify your answer. So first wala 10 into 10 raised to 11. 10 into 10 raised to 11 equals to 100 power 11. Okay. अभी हम पहले ये सॉल्व करते हैं। ये सॉल्व करते हैं LHS लेफ्ट हैंड साइड और देखते हैं ऐसा आंसर आता है कि नहीं आता है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे दोनों बेस सेम है, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है, तो ये क्या हो गया 10, 1 प्लस 11, तो 1 प्लस 11 कितना हो गया 12, 10 power 12. 10 पावर 12। मैम इक्वल हुआ दोनों कि नहीं हुआ इक्वल? मैम इसके नीचे लिखने का हैंस नॉट वेरीफाइड। हाँ तो ये दोनों RHS RHS 10 power 12 is not equal to 100 power 11. Therefore statement is false. मैम मैंने ऐसे करके लिखा है मैम। बोल दो ना बेटा कैसे लिखा है, बोल दो। मैम बिकॉज करके 10 पावर 1 मल्टी 10 पावर 11, तो मैम उसका आंसर आ गया 10 पावर 12 और नीचे 100 पावर 11 तो 10 पावर 22 होता है, तो वो नहीं होता मैम, ऐसा करके ठीक है। लिखा हाँ ठीक है चलेगा। है। ओके मैम। ये 100 पावर 11 को मेरे को बताओ तुमने 10 पावर 22 क्यों लिखा, कैसे लिखा? मैम 10 को 22 बार मल्टीप्लाई करेंगे ना। नहीं तो कैसे 100 पावर 11 को हम 10 पावर 22 कैसे लिखते हैं? मैम मतलब पता नहीं चला मैम। तुम बताओ ना, मेरे को भी नहीं पता चला। तुमने क्या लिखा 100 पावर 11 को लिख दिया 10 पावर 22, कैसे लिखा? मैम मेरे को पता नहीं चला था, तो मैंने दीदी की हेल्प ली थी मैम, इसलिए। हाँ तो बताओ बेटा, किसी की भी हेल्प लियो, तुम्हें आना चाहिए। अपना मेन गोल है कि तुमको पता चलनी चाहिए और तुम मेरे को बता सकते हो, ऐसा होना चाहिए। तो मेरे को बताओ ये कैसे हुआ? मैम मेरी दीदी ने कहा इसलिए मैंने मान लिया। जोर से बोलो ध्वनित। मैम मेरी दीदी ने कहा इसलिए मैंने मान लिया मैम। मेरी दीदी ने कहा तो मैंने लिख दिया। तो बेटा दीदी भी कोई भी पढ़ाएगी ना, अगर मैं भी किसी की दीदी हूँ, मैं किसी को पढ़ाऊंगी तो बिना समझाए नहीं पढ़ाऊंगी। दीदी बिना समझाए पढ़ा देती है? नो मैम। क्या ये दीदी कोई अलग दीदी है? नो देख मैम। देख के लिख लेते हैं कहीं से भी, अलग टाइप की दीदी है? नो मैम। दीदी का नाम भी होता है, क्या नाम होता है दीदी का? नवनीत मैम गूगल वाली दीदी। नो मैम। क्या नाम होता है बेटा? मेरी दीदी। या स्कूल की बुक कुछ नाम है तो? नो मैम। क्या बेटा नो मैम? मैम वो नहीं, मेरी यहाँ पे मेरे को बता नहीं पा रहे कि 10 पावर 22 कहाँ से आया। अगर कॉपी करना है तो इससे बेटर है करो ही मत होमवर्क। मेरी 2 डांट खा लो और करो ही मत होमवर्क, फिनिश। बट इफ यू वांट टू डू दिस देन यू डोंट रिक्वायर संदीप पटेल ग्रुप ट्यूशन। एसपीजीटी की जरूरत नहीं है बेटा, दीदी को लेके एग्जाम में बैठोगे। कोई भी दीदी बिना बिना तुमको करे तो समझाए बिना तो कोई बोलेगी नहीं लिख दे, ऐसा ऐसा बोलती दीदी मैडम? कौन बताएगा मेरे को ये 10 पावर 22 कैसे होगा? मैम क्या बोलो रुतवा। मैम मैं बोलूं? रुतवा रुतवा बोलो।
हर्ष बोलो। मैम अगर हम 100 को 10 से डिवाइड करें तो ऊपर हम उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इतना खतरनाक लॉजिक ला रहे हो। मैम आप क्वेश्चन रिपीट कर सकते हो? मैम ये कैसे हुआ, मैंने ये पूछा। 100 पावर 11 को 10 पावर 22 कैसे लिख सकते हैं? मैम कहना है। हाँ रुतुआ बोलो। मैम 10 मल्टीप्लाई 10 करेंगे तो 100 आता है, तो 10 बाद में ऊपर है ना 2 लिखने का, और उसका रेशियो 11 है ऐसे। तो अगर मैं 10 के ऊपर 2 लिख दूं, फिर उसका रेशियो बोल रहे हो तो पावर बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? सॉरी मैम, पावर 11 है। फिर उसके बाद क्या होगा? मैम 11 मल्टीप्लाई 2 करने का। 11 मल्टीप्लाई 2 by which rule you are applying this? Can you tell me that rule? 10 को 2 टाइम्स करने के 100 आता है। लॉ, कौन सा लॉ अप्लाई किया तुमने? तुम बोल रहे हो कि 2 और 11 को मल्टीप्लाई कर देंगे, ट्रू, करेक्ट है। लॉ कौन सा अप्लाई किया तुमने? कोई लॉ ही अप्लाई। पहले तो कैमरा ऑन करो ना रुतुआ बेटा। मैं क्या ब्लैक स्क्रीन से बैठ के बात करूं क्या? हाँ बोलो, वो लॉ कौन सा अप्लाई तुमने? तुमको सारे लॉज आते हैं ना, तभी तुमने ये किया कि तुमने 2 और 11 को मल्टीप्लाई किया। आई एम जस्ट आस्किंग यू, टेल मी दैट लॉ, व्हिच लॉ हैव यू यूज्ड? जैसे अगर कोई सम ऐसा लिखा हो, तो यहाँ पे मैं 2 पावर 5 लिख लूं, आई विल से दैट आई हैव यूज्ड दिस लॉ, ये मेरा लॉ है। या अगर बेस सेम होते हैं तो पावर्स ऐड हो जाते हैं। तुमने कौन सा लॉ यूज किया? लॉ 3 आपने लिखा था ना। हाँ, लॉ 3 बोलो कौन सा लॉ है वो? मैम a by a power m मल्टीप्लाई y पावर, सॉरी a पावर m, उसके ऊपर n लिखा है ब्रैकेट क्लोज करके, इज इक्वल टू a m n। मैम कहना है से दूसरी बार मेरे को कोई पकड़ा गया ना गलती, होमवर्क कॉपी करते हो, मैं क्लास से रिमूव कर दूंगी। I'll strictly remove from my lecture, permanently remove। मेरे को चाहिए ही नहीं, स्टूडेंट ही नहीं चाहिए ऐसे। 10 पावर 11, 100 पावर 11 है, और सेम थिंग 100 को आई कैन राइट डाउन 10 का पावर 2। 100 मतलब 10 का स्क्वायर, 10 into 10, 10 का पावर 2, और उसके ऊपर उसका पावर क्या है? 11। तो अब यहाँ पे वो थर्ड लॉ लगेगा कि अगर ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट के बाद मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ऐसे उसको 10 पावर 22 लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 raised to 3 greater than 5 raised to 2। 2 raised to 3 greater than 5 raised to 2। दिस इज इजी, ये तो तुमको सिंपली सॉल्व भी करना है। 2 raised to 3 मतलब 8। 5 raised to 25 is false। ग्रेटर, बड़ा नहीं होता। 2 raised to 3 बड़ा नहीं होता है, क्योंकि 5 पावर 2 क्या होता है? 5 into 5, 5 multiply 5, 5 multiply 5 क्या होता है? 25। 2 पावर 3 मतलब 2 into 2 into 2, 8। फिर ये भी फॉल्स हुआ। 2 raised to 3, 3 raised to 2, थर्ड। equals to 6 raised to 5। यहाँ कोई लॉ नहीं लगेगा, क्योंकि दोनों के बेस सेम नहीं है, दोनों के पावर्स भी सेम नहीं है। तो अभी हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो 2 पावर 3 का मतलब होता है 8, 3 पावर 2 का मतलब होता है 9,
What is 8 times 72. 72. क्या है? अब इसके सामने दिया क्या है? 6 6 power 5. तो ऑब्वियसली ये 6 पावर 5 तो नहीं है। 6 पावर 5 मतलब क्या होता है? 6 into 6 into 6 into 6 into 6 72 तो होगा नहीं। 6 6 का 36 हो गया। 36 6 का और भी कोई बड़ा नंबर होगा 216 216 6 का और बड़ा नंबर और फिर उसके बाद भी एक और बार 6 है। मैम 7776. तो वो तो है ही नहीं। 72 तो इक्वल है ही नहीं उसके, तो ये भी स्टेटमेंट क्या हुआ? फॉल्स। थ्री पावर 0 इक्वल्स टू 1000 पावर 0। ट्रू आना चाहिए सबको। True. ट्रू। दोनों की वैल्यू क्या आएगी? 1. 1. Anything power 0 is always 1. 1. So the answer 1. Correct. Now question number 4. Express each of the following as a product of prime factors only in exponential form. तो बार-बार ये अंदर बार क्यों हो रहे हो? एक जगह पे बैठ जाओ आराम से। मैम ये फाइनल है। हाँ मैम ये फाइनल। हाँ मैम अब नहीं हूँ। बेटा नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है तो पापा को फोन लगाऊं मैं कि नेटवर्क ठीक कर दो, क्योंकि पापा फोन लगाते हैं ना तो नेटवर्क 10 दिन तक ठीक रहता है। ध्यान है तुम्हारा आज भी नेटवर्क नहीं है? यस मैम। मैम मम्मी से बात करनी हो तो करवा दूं? तो बेटा वो ठीक करवाओ, ऐसा आप कब तक चलेगा? हाँ मैम पापा ट्राई कर रहे हैं लेकिन हो नहीं रहा। आयुष मिश्रा, नीव बोरा। मैम इसमें सिर्फ प्राइम नंबर से ही करना था ना? हाँ सिर्फ प्राइम नंबर से। 108 192। मैम 2 से करेंगे मैम। दोनों के निकालो सब लोग फैक्टर्स और बताओ मुझे क्या आता है। 108 को करो 2 से। मैम 54. 27. 3 से करेंगे तो 9. 3 से करेंगे तो और फिर 3 और हो गया 1. तो 108 क्या आया? 2 कितने हैं? 2 बार 2 raised to 2 multiply by 3 raised to 3. अब हम 192 का फाइंड करेंगे। 296. 48. 224. 12. 6. 6. 3. 3 1. Now we will use 3. मैम 2 आएगा। अब 3. 3 1 तो 2 का पावर 6 2 power 6 3 and 2 3 power 6 into 3। अब इसको फाइनल सॉल्व करो। यहाँ पे 2 का पावर 2, यहाँ पे 2 का पावर 6, दोनों पावर ऐड हो जाएंगे। मैम पर मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने दोनों को एक साथ कर लिया। और मैम 3 plus 1 is equal to 3 upon 3 raised to power 4. 2 का पावर 8, 3 का पावर 4। That is your answer. हाँ दोनों क्या बोल रहे थे बेटा? मैम मैंने तो दोनों को एक ही साथ कर लिया था। नहीं करना है, ऐसा अलग अलग ही करना है। ओके मैम। ये वो भी तुमको दीदी ने बताया वैसे ही किया। वो मैम आप 1 मिनट स्लाइड में थोड़ा हो जाओ। मैम डन। सेकंड 270 का बताओ फैक्टर्स निकाले थे कि नहीं निकाले? मैम निकाले हैं मैम। हाँ बताओ। मैम 2 का पावर 1 into 5 का पावर 1 into मैम 3 का पावर 3। 3 का पावर 4। मैम 5 मल्टी 2 मल्टी 3 पावर 3। यस मैम। 270 का क्या है? मैम 2 power 1 मैम 2 power 1 3 power 3 और 5 power 1। Yes ma'am. Okay.
फिर 729 और 64 ऐसे ही मैम निकालोगे। 3 पावर 7 into 2 पावर मैम 6। 729 का मैम 3 पावर 729 का 3 पावर 6। कितना आ रहा है? 2 पावर 6 3 3 पावर 6 मैम 3 पावर 6। मैम 3 पावर 6। मैम मैं डायरेक्ट वो वाला डायरेक्ट वाला आंसर बोलूं मैम, मैंने जैसे मैं किया प्राइम है। फैक्टराइजेशन करके बोल रही मैम 2 पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 6। हूँ। मैम टोटल पूरा आंसर तो मैम 3 मैम पावर 7 into 2 पावर 6 आ रहा है। बोलो ना 729 का क्या आ रहा है? 3 raised to 6 multiply 2 raised to 6. 3 raised to 6 और दूसरा क्या है? 64 2 raised to 6। 2 raised to 6. 2 raised to 6 करेक्ट। तो ये आ जाएगा 3 raised to 6 2 raised to मल्टीप्लाई बाय 2 6। raised। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 2 लगा क्योंकि पावर सेम है। पावर सेम है तो हम बेस को क्या कर सकते हैं? मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाएगा ये? 3 2 6 raised to 6. 6 raised to 6। 6। जब पावर सेम हो तो तुम नीचे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हो, अगर पावर सेम हो तो। फिर ऐसे ही 768 का क्या आ रहा है? 2 raised to 8 multiply 3 raised to 1 मल्टीप्लाई बाय 3 is equal to 1536. मैं मार्क कर 768 क्या है? 2 raised to मैम 2 raised to 8 Multiply 3 raised to 3 1. raised to 1। बस इतना ही लिखना है। मैम इतना ही है। मैम अकेला 3 लिखे तो भी चलेगा ना? हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो सबसे पहले तो देखो ये ब्रैकेट के अंदर और ब्रैकेट के बाहर है तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 2 पावर 10 7 पावर 3 8 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा? मैंने तुम लोग को याद भी करवाया है। 2 का पावर क्या लिख सकते हैं? 2 पावर 3 3. पावर 3 और फिर उसके ऊपर भी 3। सबको बेटा 2 के पावर्स ना 10 तक याद कर ही लेना है। मैम 2 कर पावर 1 लिया से है। 2 पावर 10 तक याद कर ही लेना है, जिसने नहीं किया है। फिर आया 2 का पावर 10 7 का पावर 3, ये हो गया 3 और 3 मल्टीप्लाई होगा 9 और 7 पावर 1। चलो इसे सॉल्व कर दो। Ma'am done. मैम 2 का पावर 1 into 7 पावर 2 आ रहा है। Yes ma'am. ये 10 और नीचे पावर है तो माइनस, ये भी ऊपर और नीचे पावर है तो माइनस 10 minus 1 3 minus 7 raised to 2. तो 2 7 का स्क्वायर क्या होता है? 49 आंसर इज 90। सेकंड करें? हाँ सेकंड करो।
नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो, मैम वो मुझे पता नहीं चल रहा। मुझे आधा ही पाया। 25 को 5 पावर 2 लिख सकते हैं मैम? हाँ लिख सकते हैं मैम तो ऐसा ही लिखना है ना उसमें? हाँ ऐसे ही लिखना है। ओके मैम। 10 पावर 3 अभी 25 को हम लिख सकते हैं 5 into 5 मतलब 5 का पावर 5 raised to power 2। ठीक है। अब हम 10 को क्या लिख सकते हैं 2 into 5। 10 के भी फैक्टर्स तो निकाल ही सकते हैं। तो 10 को I can write down 2 into 5 but what about the power? 10 के ऊपर कौन सा पावर था 3 तो दोनों को ही 3 मिलेगा। ठीक है, दोनों को क्या मिलेगा 3। हेलो, 2 plus 2 ये दोनों ऐड हो जाएंगे 3 पावर 8 नीचे 2 raised to 3 5 raised to 3 3 पावर 4। ये हो गया 5 पावर 4 3 पावर 8 नीचे 2 पावर 3 5 पावर 3 और t का भी पावर 4। अब ये दोनों सॉल्व हो जाएंगे और ये दोनों भी सॉल्व हो जाएगा। ये दोनों सॉल्व हो जाएंगे। So मैम 5 raised to 4 और 5 raised to 3 का आएगा 5 raised to 1 और 8 t raised to 8 और t raised to 4 का आएगा t raised to 8 minus 4 और नीचे 2 लिखना भूलना मत। वो ऐसे ही रहेगा क्योंकि उसके साथ कोई पेन नहीं है, कोई दूसरा 2 तो है नहीं जिसके साथ वो कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट हो, तो वो एज इट इज ही रहेगा। तो 5 पावर 1 t पावर 4 2 पावर 3 को नाउ यू कैन राइट डाउन 8। दिस इज योर आंसर। मैम 2 मिनट रुकना। मैम मेरा राइट है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट लेक्चर में ये खत्म हो जाएगा। डेसिमल सिस्टम बहुत इजी है, वो खत्म हो जाएगा। तो ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर डिसाइड करेंगे कि अब 6 लेना है कि 9 लेना है। ये दोनों का डिफरेंस आ रहा है ना, और एग्जाम भी दोनों की आ रही है। मैम 15 की एग्जाम आ रही है। मैम आप कंपेयरिंग मैम मेरी भी आ रही है।